Hello students, welcome to my next video. Today we'll be starting with a new chapter, that is chapter number 8, Company Accounts, Issue of Shares. Students, we are very aware of what do you mean by shares. I think in SP you might have learned what is shares, what is share capital. Now in bookkeeping and accountancy in our syllabus, now we are going to learn how we do accounting treatments for shares. When we shares we purchase, when we shares are sold, so what kind of treatment you give for shares. But before jumping to the accounting treatment, we'll have a small introduction of the chapter Company Accounts, Issue of Shares. So the introduction, now the small thing is what, say for example in sole trading concern and in partnership firm, you cannot raise more capital. There is a limitation of more capital. There is a limitation of hiring more people into the business. As we know that for a sole trading concern, there is only one person required. So one person cannot bring lots of capital into the business. So he might have some restriction. He might have some limitations to bring lot of capital into the business. Same way partnership firm also. We can hire 50 people, but again this 50 people cannot bring large number of capital or large number of funds into the business. So to overcome these limitations, हम इस disadvantages को overcome करने के लिए जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है ये एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, एक कंपनी है जहाँ पे बहुत सारा पैसों की ज़रूरत होती है. तो ये बहुत सारा पैसा एक आदमी या दो आदमी नहीं लेकर आएगा. दिस विल बी शेयर, दिस विल बी contributed by various people and not necessary that they should be relatives only. It can be any person. The information about the shares, information for the requirement of capital will be displayed in the newspaper and you come to know that for a particular company shares are being issued या shares market में बेचने के लिए रखा है. तो आप as a customer, as a prospective buyer, आप क्या करोगे, वो shares of a company को purchase करना चाहोगे as a investment purpose. बिकॉज आपके पास जो भी पैसा जो सेविंग होता है आप यहाँ वहाँ रखने से अच्छा कि आप वो पैसा कहीं पे इन्वेस्ट करो. तो आप इन्वेस्ट कैसे करोगे, किसी कंपनी के शेयर्स को आप परचेस करोगे. ठीक है, तो वो होता है शेयर्स. अब शेयर्स हम डिटेल में पढ़ते क्या है. जॉइंट स्टॉक कंपनी, जेएससी मतलब जॉइंट स्टॉक कंपनी. जॉइंट स्टॉक कंपनी एज ए मॉडर्न फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन emerged to meet the requirement of largest sized business to remove the main defects or limitation of the partnership firm of organization. It is therefore felt necessary to collect the capital from the public at large and encourage the public to contribute capital. So what happened here is we are encouraging the public to buy the shares of our company, become the owner of our company, and whatever profits are earned by the company, so company will be distributing those profit to the public in the form of dividends. Like how you invest money in the bank, you will be getting in return interest you will be getting. The same way when you are investing money in the shares, you will be getting dividend in return. So we will be more clear about share. तो share क्या होता है, share क्या होता है. Share is the share in the capital of the company and includes stock as well. जैसा कि फॉर एग्जाम्पल अब मुझे एक कंपनी को स्टार्ट करने के लिए मुझे 1 लाख रुपया चाहिए. सॉरी 1 लाख नहीं, सॉरी वी विल टॉक अबाउट 1 करोड़ रुपीस. अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं 1 करोड़ रुपीस अगर मुझे एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए चाहिए, तो ये 1 करोड़ रुपीस एक आदमी लाएगा क्या? नहीं, मेनी पीपल विल बी गिविंग. सो अगर हम डिवाइड करेंगे, सपोज ये 1 करोड़ रुपया हम एक आदमी से नहीं लेंगे, हम सपोज फॉर एग्जांपल हम 10 लाख आदमी से लेंगे. ठीक है, हम 10 लाख आदमी से लेंगे. तो जब हम 10 लाख आदमी से लेंगे तो 3 कट, यहाँ पे 2 कट और ये कट, तो कितना हो गया, 10 शेयर हो गया. ठीक है, अब देखो कैसा ये मतलब कि अब
जैसा कि शेयर जो होता है, मैंने क्या बोला, शेयर जो होता है, शेयर इज द शेयर इन द कैपिटल ऑफ अ कंपनी एंड इंक्लूड स्टॉक एज वेल। अब इस स्टॉक, ये जो शेयर का जो वैल्यू होता है, शेयर मतलब क्या है, कंपनी में हिस्सा। जब आप कोई कंपनी का शेयर खरीदते हो, कोई स्मॉल पार्ट्स आप कंपनी का खरीदते हो, तो आप क्या बन जाते हो, यू बिकम अ ओनर ऑफ दैट कंपनी, यू बिकम द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। अब वो शेयर का जो कॉस्ट है, 1 रुपया भी हो सकता है, 10 रुपया भी हो सकता है, 5 रुपया भी हो सकता है, 100 रुपये भी हो सकता है। इट इज कॉल्ड फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब जब आप शेयर्स परचेज करते हो तो उस टाइम पे उस शेयर की वैल्यू क्या है, और अपना शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर जो प्राइस लिखा होगा, दैट इज कॉल्ड फेस वैल्यू। यानी आपने वो शेयर कितने दाम पे खरीदा, व्हाट प्राइस, एट व्हाट प्राइस यू हैव परचेज दैट शेयर। तो शेयर इज द शेयर इन द कैपिटल ऑफ अ कंपनी एंड इंक्लूड स्टॉक एज वेल। द फेस वैल्यू ऑफ शेयर कैन बी ₹1, ₹5, ₹10 या ₹100। ठीक है। एंड ये जो शेयर, छोटे छोटे शेयर, जैसा किसी ने 1000 शेयर परचेज किया, किसी ने 2000 शेयर परचेज किया, किसी ने 10 शेयर परचेज किया, किसी ने 50 शेयर परचेज किया, ये पूरा शेयर का अमाउंट को अगर आप जोड़ोगे, आपको क्या मिलेगा, शेयर कैपिटल मिलेगा। तो शेयर कैपिटल क्या होगा, जैसे अभी 10 आदमी है तो 10 आदमी, 10 जने 10 कुछ तो शेयर परचेज किया होगा। किसी ने 50,000 परचेज किया, किसी ने 10,000 परचेज किया, किसी ने 20,000 परचेज, किसी ने 5 शेयर परचेज किया, किसी ने 100 शेयर परचेज किया। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि हर एक को इतना ही शेयर परचेज करना है, लेकिन बाद में हम जितना भी शेयर गया है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे फेस वैल्यू से। जैसा कि अगर समझो टोटल अपना शेयर गया है, 1 लाख शेयर गया है, और एक शेयर के पीछे हमें 10 रुपीज मिला है, तो 1 लाख को मल्टीप्लाई करो 10 से, आपको मिलेगा 10 लाख रुपीज। वो 10 लाख रुपीज क्या हुआ, आपका शेयर कैपिटल हुआ है। वो 10 लाख रुपीज क्या हुआ, आपका शेयर कैपिटल हुआ है। तो शेयर कैपिटल मीन्स द कैपिटल रेज्ड बाय द कंपनी बाय इश्यू ऑफ शेयर्स। ओके, जब हम शेयर इश्यू करते हैं, देर आर मेनी पीपल, देर आर मेनी पब्लिक हु विल बाय द शेयर एंड दे विल गिव सम मनी टू द कंपनी, सो दैट इज कॉल्ड एज अ शेयर कैपिटल। अगर हमें फायदा क्या है, जब हम कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हो, व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग मनी इन द शेयर्स ऑफ द कंपनी, you will be getting at the end of the year or after 6 months, you will be getting an income that is called as a dividend. Okay, so मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है, if 1000 shares are issued at ₹100 each, अगर 1000 शेयर हमने रखा है बेचने के लिए, तो पब्लिक खरीदते हो उसको, तो 1000 into 100 करते हो, तो आपका शेयर कैपिटल कितना हो जाता है, 1 लाख रुपये हो जाता है। So this is what you call share capital. Now we go for types of shares. Now types of shares, basically there are 2 types of shares. One is the equity shares. हम इसे equity share बोल सकते हैं. We can call it as equity share or you can call it as ordinary shares. Either you can call as equity share or you can call as ordinary shares. So now we go for types of shares. There are 2 types of shares basically. Equity share or ordinary share. Okay, now you can buy equity share or you can buy preference shares. Okay, you might have seen the ad by Sachin Tendulkar. He talks about mutual funds, like you have to invest money in mutual funds. So now those people who love risk, those people who enjoy risk, जो लाइफ में रिस्क लेना चाहते हैं, ऐसे लोग ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेगा। उसी तरह those people who love to take a risk, they will only buy equity shares. Equity shares and preference share. अभी if I love to take a risk, अगर मुझे रिस्क पसंद है तो I will take equity share. अगर मुझे रिस्क नहीं पसंद है, मुझे डर लगता है, तो in that case I can buy preference shares. Now why we should not buy equity share or why we should buy equity shares? The one reason I told, who love risk they should go for equity share, and those who don't love risk they can go for a preference share. लेकिन हर चीज का बेनिफिट भी होता है, जैसा एडवांटेजेस होता है वैसा ही डिसएडवांटेजेस भी होता है। इक्विटी शेयर का फीचर्स क्या होता है, इक्विटी शेयर का मतलब क्या है, पहले हम पढ़ते हैं। अ शेयर विच इज नॉट अ प्रेफरेंस शेयर इज एन इक्विटी शेयर। डेफिनेटली
जो इक्विटी शेयर नहीं है वो प्रेफरेंस शेयर है, और जो प्रेफरेंस शेयर नहीं है वो इक्विटी शेयर है। तो अ शेयर विच इज नॉट अ प्रेफरेंस शेयर इज एन इक्विटी शेयर। Now why we say they are called as equity share? Because preference का मतलब कैसा होता है? They are not given any kind of preference, they are not given any kind of privilege. मतलब क्या, देखो, अगर जब कंपनी का प्रॉफिट होता है, तो कंपनी क्या करता है, सबसे पहला प्रॉफिट का जो हिस्सा है इन द नेम ऑफ डिविडेंड, वो किसको देते हैं? सबसे पहला देंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देंगे, डिबेंचर होल्डर्स को देंगे। बाद में अगर कुछ पैसा बचता है, अगर प्रॉफिट का कुछ हिस्सा बचता है, देन दे विल गिव टू द इक्विटी शेयर होल्डर। यानी कि जब डिविडेंड बांटा जाता है तो सबसे पहले लास्ट में किसको दिया जाएगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया जाएगा। उसी तरह जब कंपनी को बंद करते हैं, जब कंपनी को वाइंड अप करते हैं, व्हेन वी वाइंड अप द कंपनी, तो जो भी पैसा हमें देना है अपने शेयर होल्डर्स को, अपने क्रेडिटर्स को, बाहर के लोगों को, जिसको भी पैसा बांटना है, तो सबसे पहला हम लोग प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देंगे पैसा। और अगर सबसे लास्ट इक्विटी शेयर होल्डर को चांस मिलेगा अपना पैसा वापस लेने के लिए। आर यू गेटिंग? तो इसका मतलब ये हुआ, इक्विटी शेयर होल्डर को जो है रिसीविंग, दे हैव नो प्रेफरेंस इन रिसीविंग फिक्स्ड डिविडेंड। उन लोगों को फिक्स्ड इतना ही डिविडेंड हमेशा मिलेगा ऐसा जरूरी नहीं है। इट डिपेंड्स अपॉन द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी एंड इट डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ द फंड आफ्टर पेइंग टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। सेकेंड, प्रायोरिटी एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। जैसा मैंने बताया कि जब बिजनेस को बंद कर रहे हैं, व्हेन वी आर वाइंडिंग अप द कंपनी, when you're winding up the company, you need to pay to the shareholder. So the first preference will be given to the preference shareholder. उसके बाद अगर पैसा कुछ बचता है तो इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा। ठीक है। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या होता है? फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है, फिक्स्ड उनका पेमेंट वापस मिलेगा एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। तो इक्विटी शेयर होल्डर को फायदा क्या है? अगर समझो कभी कभी अगर एक्सेस प्रॉफिट होता है बिजनेस में, तो शेयर इन प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी, यानी कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को अगर समझो फॉर सम ऑफ द ईयर, अगर समझो कंपनी में बहुत प्रॉफिट हो गया है, तो जब बहुत प्रॉफिट होता है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जितना हमेशा मिलता है उतना ही मिलेगा डिविडेंड, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर को कुछ ज्यादा परसेंट मिल सकता है। इसका मतलब दे शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। दे आर रिस्क बेयरर्स एंड दे आर कॉल्ड द ओनर्स ऑफ द कंपनी। Equity shareholders, they are ordinary shareholders, they are the owners of the company, they are having a share in the profits, they take risk and they are given less preference in terms of fixed dividend and the repayment of capital at the time of winding up. Second type is preference shareholders. उसका opposite है, equity shareholder का opposite है preference shareholders. They have rights with respect to payment of dividend. They have rights with respect to payment of dividend and repayment of capital at the time of winding up of the company. यानी कि जब बिजनेस में डिविडेंड बांटा जाता है, जब बिजनेस बंद हो रहा है, पैसा वापस दिया जा रहा है, तो सबसे पहला लाइन में कौन खड़े रहेंगे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स खड़े रहेंगे। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, दे हैव गॉट प्रेफरेंशियल राइट्स, they have got preferential rights with respect to the payment of dividend and repayment of capital at the time of winding up of the company. Now types of preference shares. Types of preference share, basically there are 4 types. The first one is cumulative and non-cumulative preference shares. Second one is redeemable and non-redeemable. Third one is participative and non-participative. कन्वर्टिबल एंड नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। ना ये हम लोग ने इसमें पढ़ा है, फिर भी मैं आपको बताता हूँ, उसका शॉर्ट में समझाता हूँ। क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या होता है? सपोज अगर आपने क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर लिया है, सपोज यू हैव टेकन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, तो अगर आपको 2 साल कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा हुआ नहीं, तो आपको 2 साल डिविडेंड नहीं मिला है। थर्ड ईयर में कंपनी को बहुत प्रॉफिट हुआ है, तो कंपनी आपको 3 साल का डिविडेंड देंगे अगर आपने क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर परचेस किया है तो।
if you have purchased a cumulative preference shares, so whatever dividend which was not paid in the previous years, that will be added and it will be given to you if company gets excess profit in the coming years. But if you have taken a non-cumulative preference shares, अगर आपको ये साल में कुछ कारण से अगर आपको डिविडेंड नहीं मिला है, तो वो डिविडेंड अगले साल में एडअप होके नहीं मिलेगा. तो ये साल का जो डिविडेंड आपको नहीं मिला वो आपको नहीं मिलेगा क्योंकि आपने नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर परचेज किया है. ठीक है, यानी ये क्या होता है, इट इज अ व्हाट यू कैन से, इट्स एन एडिशन ऑफ, और यू कैन से इट इज अ टोटल ऑफ ड्यूज you will be getting in case of cumulative preference shares. You will not get the dues of previous year in the current year in case of non cumulative preference share. यानी कि अगर आपको 2 साल में डिविडेंड नहीं मिला है, तीसरा साल में आपको तीनों साल का मिलेगा, पिछले 2 साल का और ये साल का, तीनों साल का मिला के आपको मिलेगा अगर आपने क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर परचेस किया है. लेकिन अगर आपने नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर परचेस किया है, तो अगर समझो पिछले 2 साल में अगर आपको डिविडेंड नहीं मिला है कुछ कारण से, तो डेफिनेटली आपको ये साल में वो जो पिछले साल का जो 2 साल का है वो आपको ऐड होके नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ ये साल का ही मिलेगा. रिडीमेबल एंड नॉन रिडीमेबल. अगेन रिडीमेबल मतलब क्या है कि अगर हम लोग ने समझो प्रेफरेंस शेयर कुछ पर्टिकुलर पीरियड के लिए लिया है, सपोज 5 साल के लिए लिया है, ओके, तो आपको आफ्टर 5 इयर्स आपको पैसा वापस किया जाएगा. दैट इज कॉल्ड रिडीमेबल. अगर आपने समझो आपने परचेज किया है प्रेफरेंस शेयर से फॉर एग्जांपल फॉर 4 इयर्स, तो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 4 इयर्स यू विल बी गेटिंग बैक योर कैपिटल वॉट एवर यू आर इन्वेस्टेड. ओके, बट इफ यू हैव टेकन अ नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, तो अगर नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर परचेज किया है और अगर आप बोलोगे मुझे 5 साल के बाद मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए, तो आपको कंपनी पैसा वापस नहीं देगी. कंपनी आपको पैसा ओनली जब कंपनी को बंद कर रहे हैं तब आपको उसका पैसा वापस मिलेगा. यानी कि यू विल बी गेटिंग द amount of share capital whatever you have paid to the company, you will get only at the time of winding up of the company. यानी कि जब बिजनेस बंद हो रहा है उस समय सिर्फ आपको पैसा वापस मिलेगा अगर आपने नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर परचेज किया है. तो अगर आपने रिडीमेबल परचेज किया है तो वहां पे पीरियड स्पेसिफाई करना पड़ेगा, 10 साल या 5 साल जो भी है. तो अगर 5 साल बोला है तो आफ्टर 5 इयर्स यू कैन रिडीम योर कैपिटल, यू कैन टेक बैक योर कैपिटल. बट इन केस ऑफ नॉन रिडीमेबल यू हैव टू वेट फॉर द कंपनी टू गेट वाइंडेड अप. थर्ड वन इज पार्टिसिपेटिव एंड नॉन पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर. Participative मतलब if you are buying a participative preference share, then you get a right to involve in the discussion of the company. अगर समझो कोई कंपनी मीटिंग हो रहा है, you have purchased a participative preference share, then you can take a participation of the meeting, you can discuss in the meeting, you can give your opinion, you can give your suggestion. But if you have taken a non-participative preference shares, if you have taken a non-participative preference share, in that case you will not be getting any chance to get involved in the meeting, to give your suggestion, to give your opinion, etc. Fourth one is convertible and non-convertible preference shares. Convertible इसका मतलब ये, अगर आपको लग रहा है कि कंपनी बहुत अच्छा चल रहा है, तो आफ्टर 5 इयर्स आपको लग रहा है कि आप अपना प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो इट इज पॉसिबल इफ यू हैव परचेस्ड अ कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स. लेकिन अगर आपने नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर परचेज किया है तो लाइफ लॉन्ग तक आपका प्रेफरेंस शेयर ही रहेगा. अगर कंपनी का बहुत प्रॉफिट हो रहा है एंड यू वांट टू कन्वर्ट योर प्रेफरेंस शेयर इनटू अ इक्विटी शेयर, देन इट इज नॉट पॉसिबल as you have purchased non-convertible preference shares. Clear? So these are the 4 main types of preference shares. The first one is cumulative and non-cumulative preference share. Cumulative and non-cumulative मतलब getting the dues back.
Second one is redeemable and non-redeemable preference share, that is payback of capital only at the time of winding up in case of non-redeemable, and redeemable after a particular period of time you can take back your capital. Third one is participative and non-participative preference shares. Participative means if you purchase a participative preference shares, then you can involve in the meeting, you can participate in the meeting, you can express your views, you can express your opinions. Whereas when you purchase a non-participative, when you are a non-participative preference shareholder, then definitely you will not get chance to attend the meeting, you will not get a chance to express your views and opinions. Fourth one is convertible and non-convertible preference shares. Convertible means after a particular period of time, if you wish to convert your preference share into equity share, you are most welcome in case you have purchased a convertible preference shares. But if you have purchased a non-convertible preference share, then definitely you have to remain as a preference shareholder only. You cannot convert your capital, your preference capital, into a equity share capital. Okay. Now types of share capital. Now there are various terms in this chapter. That is, the first one will go for authorized capital. ऑथोराइज कैपिटल का मतलब क्या होता है कि कंपनी ने डिसाइड किया है, उनके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से, कंपनीज के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से कंपनी ने डिसाइड किया है कि उनको 1 करोड़ रुपया पब्लिक से जमा करना है. ओके, और एक शेयर का वैल्यू कितना होगा, से फॉर एग्जांपल 100 रुपीज. ओके, समझो अगर फॉर एग्जांपल आपने 10 लाख आपने सोचा है, सपोज 10 लाख आपने रेस करने का सोचा है, और 10 लाख आपने सोचा है पब्लिक से लेने के लिए, तो आपने शेयर इशू किया है 10,000 और एक शेयर का वैल्यू है 100 रुपीज. तो ये 100 इंटू 10,000 इट कम्स टू 10 लाख रुपीज. दिस 10 लाख रुपीज इज ऑथोराइज्ड कैपिटल. सो ऑथोराइज कैपिटल का मतलब क्या है, देखो, द ऑथोराइज कैपिटल इज द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल which a company is authorized to issue by its memorandum of association. यानी हम पब्लिक को कितना शेयर इश्यू कर सकते हैं, इसका आपको एक अमाउंट दिया जाता है, ओके, बाय द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. सो दैट अमाउंट इज कॉल्ड एज ऑथोराइज्ड कैपिटल. अगर आपको परमिशन मिला है 10,000 शेयर इश्यू करने का, तो आप 10,000 शेयर ही पब्लिक को दे सकते हैं. आप बोलेंगे मुझे 15,000 शेयर पब्लिक को देना है, दैट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज ऑथोराइज कैपिटल इज डिसाइडेड आफ्टर फॉलोइंग सर्टन प्रोसीजर्स, आफ्टर फॉलोइंग सर्टन फॉर्मेलिटीज फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज. सो दिस ऑथोराइज कैपिटल इज ऑल्सो कॉल्ड एज nominal capital, or it is also called as registered capital. So the authorized capital is the amount of share capital which a company is authorized to issue by its memorandum of association. यानी कि जो कंपनी को परमिशन दिया है कितना शेयर आप पब्लिक को दे सकते हैं, that is called as authorized capital. This capital is also known as nominal capital or registered capital. सेकेंड वन इज, जैसा मैंने एग्जाम्पल बताया, मैंने 10,000 हमको परमिशन मिला है पब्लिक को देने के लिए, लेकिन अब मैं एट ए टाइम 10,000 पब्लिक को नहीं दे रहा हूँ. एट ए टाइम में पब्लिक को सिर्फ 7,500 इशू कर रहा हूँ, मतलब खरीदने के लिए. मतलब आई एम गिविंग टू द प्रोस्पेक्टिव बायर ओनली 7,500 शेयर्स फॉर द पब्लिक टू बाय. यानी मैं पूरा 10,000 नहीं बेच रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ पब्लिक को कितना दे रहा हूँ, 7,500 शेयर हम मार्केट में इश्यू कर रहे हैं. उसको हम बोलते हैं इश्यूड कैपिटल. इश्यूड कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ द ऑथोराइज कैपिटल विच इज ऑफर्ड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन. मतलब खरीदने के लिए हम कितना शेयर पब्लिक को दिखा रहे हैं, दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज इश्यूड कैपिटल. ठीक है, अब मैं दे रहा हूं पब्लिक को 7,500 शेयर्स, बट पूरा 7,500 शेयर्स पब्लिक नहीं खरीद रहे, पब्लिक सिर्फ 6,500 शेयर्स ही खरीद रहे हैं. तो कितना बचा यहाँ पर 1,000 शेयर्स बच गया है, क्योंकि मैंने इश्यू कितना किया,
7,500 और उसमें से पब्लिक ने खरीदा कितना है 6,500। इसका मतलब 1,000 रुपया जो पब्लिक ने अभी तक नहीं खरीदा है, 1,000 शेयर जो पब्लिक ने अभी तक नहीं खरीदा है, दैट इज कॉल्ड एज अनइश्यूड कैपिटल. So I repeat the paragraph. Issued capital means issued capital is that part of the authorized capital which is offered to the public for subscription. The part of authorized capital which is not issued यानी जो हमने issue नहीं किया है. For example मैंने थोड़ा यहाँ पे मैंने बताया आपको कि अगर समझो मुझे कितना बोला है देने के लिए, इश्यू करने के लिए मुझे 10,000 बराबर. तो 10,000 से मैंने कितना इश्यू किया मैंने पब्लिक को 7,500. तो 7,500 जो है वो क्या हो गया आपका इश्यूड कैपिटल. और आपने कितना इश्यू नहीं किया पब्लिक को 2,500. ठीक है, 2,500 पब्लिक को हमने इश्यू नहीं किया है. हमको वी हैव गॉट परमिशन टू इश्यू 10,000 शेयर्स, लेकिन हमने पब्लिक को कितना दिया है सिर्फ 7,500. बचा कितना 2,500. वो 2,500 क्या हो गया अनइश्यूड कैपिटल. दैट 2,500 इज कॉल्ड एज अ अनइश्यूड कैपिटल. उसके बाद है सब्सक्राइब्ड कैपिटल. जैसा मैंने बताया एग्जांपल में 7,500 मैंने इश्यू किया, उसमें से पूरा 7,500 पब्लिक ने परचेज नहीं किया है. पब्लिक हैज परचेस्ड ओनली 6,500. मैंने दिया कितना 7,500 शेयर्स मैंने मार्केट में इशू किया है, लेकिन उसमें से पब्लिक ने कितना परचेज किया, पब्लिक ने सिर्फ 6,500 को सब्सक्राइब किया है. तो बचा कितना 1,000. तो जो 1,000 जो है वो है अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल. जो 1,000 जो देखो मैंने इशू कितना किया 7,500, उसमें से पब्लिक ने कितना खरीदा 6,500. सो दैट 6,500 इज कॉल्ड एज सब्सक्राइब्ड कैपिटल. और जो नहीं खरीदा है दैट इज कॉल्ड अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल. So subscribed capital is that part of issued capital which is actually subscribed by the public. The part of issued capital which is not subscribed by the public are known as unsubscribed capital. Okay. अब जैसा मैंने बताया कि एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग 100 रुपीज एक शेयर के पीछे 100 रुपीज हम द फेस वैल्यू इज 100 रुपीज. तो कंपनी का ये भी रूल है कि हम 100 रुपीज पब्लिक से एट ए टाइम नहीं खरीदते हैं. वी डोंट टेक द 100 रुपीज एट ए टाइम फ्रॉम पब्लिक. हम उसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. जैसा 100 रुपीज है तो 100 रुपीज में से फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज में से मैंने 30 रुपीज एप्लीकेशन में मांगा मैंने. यानी जब पब्लिक खरीदते हैं जब पब्लिक सब्सक्राइब करते हैं तो उस टाइम हम पब्लिक से सिर्फ 30 रुपीज मांग रहे बिहाइंड 1 शेयर. अगर आपने 1,000 शेयर परचेज किया है तो 1,000 इंटू 30 करो तो 1,000 इंटू 30 बिकम 30,000. उसका फेस वैल्यू 100 रुपीज है, बट 100 रुपीज विल नॉट बी टेकन एट ए टाइम. कंपनी डिमांड्स द मनी इन स्मॉल इंस्टॉलमेंट. तो पहला इंस्टॉलमेंट होता है एप्लीकेशन, सेकेंड इंस्टॉलमेंट होता है अलॉटमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट होता है फर्स्ट कॉल, फोर्थ इंस्टॉलमेंट होता है सेकेंड कॉल. जैसा हम लोग 100 रुपीज को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं. 100 रुपीज कैसे, पहला आप बोलेंगे 30 रुपीज दो, फिर दूसरे बार बोलेंगे आप 30 रुपीज दो, फिर बोलेंगे 20 रुपीज दो, फिर बोलेंगे 20 रुपीज दो. यानी 30 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 20 कितना हो गया टोटल 100 रुपीज हो गया. यानी कंपनी जो है पब्लिक से एट ए टाइम पूरा फेस वैल्यू डिमांड नहीं करती है. पब्लिक छोटे छोटे पार्ट्स में पब्लिक से कंपनी पैसा डिमांड करती है. तो उसका एक हिस्सा है कॉल्ड अप कैपिटल. इट इज दैट पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल विच इज एक्चुअली कॉल्ड अप फ्रॉम द शेयर होल्डर्स. द कंपनी डिमांड्स ओनली दैट पोर्शन ऑफ द वैल्यू ऑफ शेयर्स विच इट कंसिडर्स सफिशिएंट फॉर द टाइम बीइंग. यानी कि जैसा मैं बताया 100 रुपीज है तो कंपनी को 100 रुपीज अभी नहीं चाहिए, कंपनी को सिर्फ 60 रुपीज अभी चाहिए. तो कंपनी पब्लिक से कितना पैसा मांगेगी, ओनली 60 रुपीज बिहाइंड 1 शेयर. सो दैट इज कॉल्ड अप कैपिटल. तो जो नहीं कॉल्ड अप हुआ, जैसे 100 में से 60 डिमांड किया, कितना बच गया 40 रुपीज बच गया. वो 40 रुपीज जो है वो अनकॉल्ड अप कैपिटल है.
ओके, अब डिमांड कर रहे हैं 60 रुपीज़ और पब्लिक कितना दे रहे हैं उसमें। अभी जैसा मैंने डिमांड किया 60 रुपीज़, तो उसमें से कुछ पब्लिक है 60 रुपीज़ दे देते हैं, कुछ पब्लिक है बोलेगा मेरे पास फिलहाल पैसा नहीं है, आई एम ओनली गिविंग यू 40 रुपीज़। तो बचा कितना, 20 रुपीज़ बच गया। तो 40 रुपीज़ जो है, जो पेड हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज पेड अप कैपिटल। और जो नहीं पेड हुआ है ऑन डिमांड, जैसा हमने डिमांड किया 60 रुपीज़ का, बट यू पेड ओनली 40 रुपीज़, तो 20 रुपीज़ बिकम्स द कॉल्स इन एरियर्स। So whatever we have explained till now, we will explain with the help of an example. Okay, so we have learned about authorized capital, we learned about subscribed capital, issued capital, called up capital and paid up capital. Okay, now this we are going to learn with the help of an example. Now for example, you see here, this is a balance sheet of a company. So the liabilities, authorized capital, so what is being informed to the company to collect the money. So 10,000 equity shares is permitted at rupees 100 each. So 10,000 into 100 will be 10 lakh rupees. So out of the authorized capital, so we are allowed to raise 10 lakh rupees from the public. Okay, so now for the time being, what company is thinking that we will not raise entire 10 lakh from the public, we are only going to issue 7,500 equity shares. तो 7,500 इक्विटी शेयर्स एट ₹100, तो हमारा इश्यूड कैपिटल कितना हो गया, 7,50,000 हुआ है। तो ये पूरा 7,50,000 कोई पब्लिक खरीदेगा नहीं, तो पब्लिक ने कितना खरीदा उसमें से, सब्सक्राइब्ड कैपिटल 6,000 इक्विटी शेयर एट ₹100 ईच। तो 6,000 इज अ सब्सक्राइब्ड कैपिटल, 7,500 हमने इशू किया था, उसमें से 6,000 सब्सक्राइब्ड हुआ है, तो बचा जो 1,500 है वो है अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल, जो पब्लिक ने खरीदा नहीं है। तो 6,000 इंटू 100 विल गिव यू 6 लाख रुपीज़। अब कॉल्ड अप कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल में बताया आपको, जैसा 100 रुपीज़ का अगर शेयर होता है, सो द एंटायर 100 रुपीज़ इज नॉट डिमांडेड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, दे आर स्प्लिटेड इन स्मॉल installment like 30 for application, 30 for allotment, 20 for first call and 20 for second call. तो 6,000 इक्विटी शेयर एट ₹100, उसका फेस वैल्यू 100 है, लेकिन कितना डिमांड किया, 60 रुपीज़ का लिए हमने डिमांड किया है। तो 6,000 इंटू 60 विल बिकम 3,60,000। ओके, तो हमने पब्लिक से डिमांड कितना किया है, 3,60,000 हमने पब्लिक से डिमांड किया है। लेकिन अब उसमें से पेड अप कैपिटल, पेड अप कितना है, 6,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच एट ₹60 पर शेयर कॉल्ड अप। ओके, तो टोटल हमारे शेयर कितने हैं, 6,000 हमने पब्लिक इशू किया है, तो पब्लिक को 6,000 के ऊपर 60 रुपीज़ पब्लिक को पे करना है। लेकिन कुछ ऐसे शेयर होल्डर है जिनके पास टोटल 500 शेयर्स है, कितने, 500 शेयर्स है, जो कॉल का जो पैसा 30 रुपीज़ है वो नहीं पे कर रहा है। 500 शेयर्स और जो कॉल्स जो डिमांड किए थे, जैसे फर्स्ट कॉल हो सकता है, 30 रुपीज़ का जो कॉल मनी वो मिला नहीं है, तो वो क्या हो गया, कॉल्स इन एरियर्स हुआ। यानी कि 3,60,000 इज अ पेड अप कैपिटल, लेकिन वो मिला नहीं पूरा, उसमें से थोड़ा कॉल्स इन एरियर्स है 15,000 रुपया, तो आपको मिला कितना है, 3,45,000। यानी आपको पैसा मिला है 3,45,000। तो सेम 3,45,000 यू विल शो इन द एसेट साइड ऑल्सो, कैश एट बैंक ₹3,45,000। ओके, देन दैट वॉज द एक्सप्लेनेशन ऑफ पब्लिक इश्यू ऑफ शेयर्स। आपसे मैंने को बताया कि पहले हम पब्लिक को इनवाइट करते हैं बाय गिविंग अ प्रॉस्पेक्टस। कंपनी इश्यूज अ प्रॉस्पेक्टस, प्रॉस्पेक्ट जैसा होगा जब आप कॉलेज में एडमिशन लेते हो, तो यू आर बीन गिवन अ प्रॉस्पेक्टस। प्रॉस्पेक्टस होता क्या है, जिसमें कॉलेज का सारा इन्फॉर्मेशन, कॉलेज का जो हिस्ट्री है वो बताया जाता है इस प्रॉस्पेक्टस में, रिजल्ट बताया जाता है, फी स्ट्रक्चर बताया जाता है। यानी कि व्हेन यू सी अ प्रॉस्पेक्टस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, एनी कंपनी और एनी कॉलेज, you get a complete idea about that particular organization.
So the issue of prospectus, the company issues a prospectus which provides complete information about the company to the prospective investors. prospective investors मतलब जो इंटरेस्टेड इन्वेस्टर है, जो हमारे कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं. The prospectus specifies the number of shares offered to the public, the face value of shares, and the amount to be paid on application, allotment and calls. यानी इस प्रॉस्पेक्टस में बताया जाता है कि आपको शेयर का फेस वैल्यू क्या है, एप्लीकेशन में कितना पूछा जाएगा पैसा, अलॉटमेंट में कितना पे करना है, फर्स्ट कॉल में कितना पे करना है, सेकंड कॉल में कितना पे करना है, या कभी कभी फर्स्ट और सेकंड कॉल दोनों साथ में आता है. तो ये डिटेल्स आपको बताया जाता है इसमें प्रॉस्पेक्टस में. सेकेंड है रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन. रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन यानी कि जब हम लोग इश्यू करते हैं मार्केट में शेयर्स इन द लीडिंग न्यूज़पेपर्स, तो पब्लिक सब्सक्राइब करते हैं, पब्लिक खरीदना चाहते हैं, तो पब्लिक क्या करते हैं, दे बाय द शेयर्स. सो दैट इज, सो द एप्लीकेशन मनी जो होता है इट इज ऑलवेज 5% ऑफ नॉमिनल कैपिटल. जो भी ऑथोराइज कैपिटल होता है उसका फेस वैल्यू का 5% होता है, दैट वी हैव टू कलेक्ट इन द एप्लीकेशन, रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन. फिर आता है एप्लीकेशन हुआ, फिर आता है अलॉटमेंट. अलॉटमेंट यानी कि जिन्होंने अप्लाई किया हम उनको शेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, हम उनको अलॉट कर रहे हैं. लेकिन हर किसी को शेयर देना पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज हर कहीं से, फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ द प्लेस पीपल आर अप्लाइंग. तो उतना शेयर हमारे पास होना भी चाहिए. तो कंपनी क्या करती है, आफ्टर गेटिंग ऑल द एप्लीकेशन दे सी वेदर इट इज ओवर सब्सक्राइब और दे आर अंडर सब्सक्राइब्ड. ओवर सब्सक्राइब मतलब क्या, जैसा 10,000 शेयर्स हमारे पास है और हम लोग को डिमांड आया 15,000 का, यानी हमारे पास है 10,000 शेयर्स लेकिन पब्लिक ने कितना डिमांड किया है, 15,000 का हमें एप्लीकेशन आया है. तो ये क्या हुआ है, ओवर सब्सक्रिप्शन. तो जब ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो इन दैट केस, जब ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, वी विल यूज अ प्रोरेटा मेथड और प्रोपोर्शन मेथड. ताकि जिन्होंने 100 अप्लाई किया है तो उसको हम 100 नहीं देंगे, कम से कम उसको 80 देंगे. जिन्होंने 150 अप्लाई किया तो उनको 150 नहीं देंगे, उनको 100 देंगे. तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोरेटा बेसिस या हम उसको बोलेंगे प्रोपोर्शन बेसिस में हम उसको अलॉट करेंगे. तो जिन लोगों को हम अलॉट करते हैं तो वी सेंड अलॉटमेंट लेटर्स टू देम, यानी आपको इतना शेयर एट दिस फेस वैल्यू इज अलॉटेड, आपको दिया है, तो वी गिव अ अलॉटमेंट लेटर्स. बट जिनको नहीं दे सका, फॉर सम रीजन ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है तो हम हर एक को दे नहीं पा रहे हैं, तो इन दैट केस वी सेंड अ लेटर ऑफ रिग्रेट. We send a letter of regret to the applicants, those who have applied for the share, but unfortunately they are not been allotted. Along with that, they are also given the refund of application money. जो भी उन्होंने application money के लिए पैसा भरा होगा वो भी उनको refund दिया जाता है. This is about allotment of shares. फिर मैंने बताया कि कंपनी पूरा फेस वैल्यू एट ए टाइम नहीं मांगती है, कंपनी डिवाइड करती है. कंपनी को जिस समय में कितने पैसे का ज़रूरत है उसके हिसाब से कंपनी क्या करती, स्लैब में पैसा पब्लिक से मांगती है. तो पहला हुआ एप्लीकेशन, दूसरा हुआ अलॉटमेंट, तीसरा हुआ कॉल्स ऑन शेयर्स हो गया. ठीक है, सो दिस इज द पब्लिक इश्यू ऑफ शेयर्स. तो पहला हमें क्या करना पड़ता है, वी हैव टू इश्यू अ प्रॉस्पेक्टस. सेकेंड, we receive money on application. Third, we allot the shares to these shareholders. Fourth is calls on shares. Now proceeding further, we will go for accounting entries. तो accounting entries में सबसे पहला मैंने बताया आपको पैसा मिलेगा, एप्लीकेशन मनी मिलेगा. सो ऑन रिसिप्ट ऑफ शेयर एप्लीकेशन मनी, यानी आपको एप्लीकेशन का पैसा मिल रहा है. सो ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी पैसा आया है तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. पैसा किस चीज़ का आया है, सो वी राइट हियर टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट.
सो ऑन रिसिप्ट ऑफ शेयर एप्लीकेशन मनी, यानी कि you are receiving the money of application, so the entry will be bank account debited to share application account. फिर ये जो एप्लीकेशन मनी जो मिला है दैट यू ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, ये जो एप्लीकेशन मनी जो मिला है दैट यू ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल बिकॉज इट गेट एडेड टू योर कैपिटल मनी. तो ऑन ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड, share application account debited to share capital account. As you know that capital is a liability which is shown on the credit side, which is shown on the liability side. Liability side मतलब credit side हुआ है. So I am writing a share application account debited to share capital account. यानी कि जब capital raise होता है capital is shown on the credit side, तो share application account debited to share capital account. ये हुआ फर्स्ट फेज, यानी कि हमको एप्लीकेशन मनी मिला, एप्लीकेशन मनी मिला, फिर हमने वो एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र किया शेयर कैपिटल में. फिर हम कुछ दिन बाद वी डिमांड फॉर अलॉटमेंट. तो ऑन शेयर अलॉटमेंट ड्यू, हम पब्लिक को बोलते हैं कि भाई आपका अलॉटमेंट मनी आप पे करो. तो एंट्री विल बी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यानी आप कैपिटल का हिस्सा मांग रहे हैं, यानी कि कैपिटल आपका बढ़ेगा. तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट. फिर ये जो अलॉटमेंट मनी आपको मिलेगा, यहाँ पे हम बता रहे हैं पब्लिक को कि आपको अलॉटमेंट मनी यू हैव टू पे. फिर हमें ऑन अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, ऑन अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड क्या आएगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. ऑन अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, on allotment money received you will be getting bank account debited to share allotment account. On allotment money received bank account debited to share allotment account. तो ये पैसा मिला अलॉटमेंट मनी. उसके बाद हम डिमांड करेंगे फर्स्ट कॉल. तो अगेन हम पब्लिक को बताएंगे कि यू हैव टू मेक द फर्स्ट कॉल मनी. तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यानी अपना कैपिटल बढ़ेगा. शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट. फिर हमें कॉल का पैसा मिलेगा. सो वी राइट हियर ऑन फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, फर्स्ट कॉल मनी यानी पैसा मिला, फर्स्ट कॉल का पैसा मिला है. सो वी राइट बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट. सेम वे ऑन सेकेंड कॉल मनी ड्यू, यानी अपना सेकेंड कॉल ड्यू है, आवर सेकेंड कॉल मनी इज ड्यू. तो वी राइट शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट. यह हम बता रहे हैं कि पब्लिक को आपका कॉल मनी इज ड्यू. तो शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट. ऑन सेकेंड कॉल मनी रिसीव्ड, ऑन सेकेंड कॉल मनी रिसीव्ड, बैंक यानी कि पैसा मिल रहा है आपको, कॉल मनी का पैसा मिल रहा है. सो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट. ऑन सेकेंड कॉल मनी रिसीव्ड यू राइट बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट. फिर ये आपका कॉमन एंट्री होता है, ये आपके हर एक सम में आपको आएगा. फिर कुछ कुछ ऐसे अलग अलग स्पेशल केस आता है जहाँ पर हम शेयर को इशू करते हैं प्रीमियम, या जहाँ पर हम शेयर को इशू करते हैं एट डिस्काउंट. अब प्रीमियम मतलब क्या, अगर समझो फेस वैल्यू अगर ₹100 है, अगर फेस वैल्यू अगर ₹100 है और हम मार्केट में 100 के बजाय अगर 120 में बेच रहे हैं, it is called share premium account. It is a income for the part, it is income for the company, it is a profit for the company. So we write the profit amount on the credit side. अब डिस्काउंट में, डिस्काउंट मतलब क्या, 100 रुपये का शेयर है, अगर 100 रुपये का शेयर है हम उसको 70 रुपीज़ में मार्केट में इशू कर रहे हैं और 80 रुपये से मार्केट में इशू कर रहे हैं, तो इट इज़ कॉल्ड एज द इशू एट डिस्काउंट. अब जो इश्यू अगर हमने डिस्काउंट में किया है तो ये कंपनी के लिए लॉस हुआ है, तो वी शो लॉस ऑन द डेबिट साइड. ओके, सो अब देखो जब, और ये इश्यू जो प्रीमियम अमाउंट होता है, जैसे कि जो 100 रुपये का शेयर है हमने पब्लिक को दिया है 120 रुपीज़, तो जो एक्स्ट्रा जो 120 रुपीज़ है ये यूजुअली आपको अलॉटमेंट जब डिमांड करते हैं उस टाइम पे ये अमाउंट को पे करना पड़ता है. और गेटिंग, जब
अगर प्रीमियम भी है या डिस्काउंट भी है तो उसका अमाउंट जो भी है वो आपका अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा। यानी अलॉटमेंट अगर समझो अभी अपना एग्जाम्पल हिसाब से 30 रुपीज़ 20 रुपीज़ 20 है, यानी 30 रुपीज़ हमने एप्लीकेशन के लिए मांगा है, 30 रुपीज़ हमने अलॉटमेंट के लिए, 20 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट कॉल, 20 रुपीज़ फॉर द सेकेंड कॉल। इन दैट केस तो अपने जो प्रीमियम अगर 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा है तो हम अलॉटमेंट में 50 रुपीज़ डिमांड करेंगे। 30 रुपीज़ इज द अलॉटमेंट मनी प्लस 20 रुपीज़ दैट इज प्रीमियम। तो मैंने वही यहाँ लिखा है, इश्यू ऑफ शेयर एट अ प्रीमियम, इश्यू ऑफ शेयर एट अ प्रीमियम ट्रीटेड एज अलॉटमेंट, यानी कि अलॉटमेंट प्रोसीजर में आएगा ये। इसका ड्यू अमाउंट की एंट्री कैसा आएगा, ड्यू है ना, ड्यू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, जैसे हम लिखा ना शेयर अलॉट, जैसे यहाँ पे देखो अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी ड्यू, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, सेम एंट्री है बट प्रीमियम आ गया है तो प्रीमियम आपको क्रेडिट साइड में डालना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर देखो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर प्रीमियम अकाउंट। फाइनली जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं, whenever we make a balance sheet, so that time the share premium will be shown in the balance sheet liability side, will be shown in the balance sheet liability side. Issue of shares at discount, again treated on allotment, तो क्या एंट्री आएगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट हमारे लिए लॉस है तो डिस्काउंट डेबिट होगा, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, issue of shares at a discount that is share allotment account debit, discount on issue of shares account debit to share capital account। ओके फिर हमने बताया ओवर सब्सक्रिप्शन, जैसा मैंने बताया कि आपका 10,000 हमारे पास शेयर है लेकिन पब्लिक ने 15,000 के लिए अप्लाई किया है, तो जो एक्सेस जो 5,000 का जो शेयर है वो हम क्या करेंगे, रिफंड करेंगे, वी विल बी refunding it, so that is called as over subscription, we will be refunding it, that is called as over subscription, so excess amount is refunded, share application account debited to bank account, पैसा जाएगा, share application account debited to bank account। फिर मैंने बताया अगर ओवर सब्सक्रिप्शन है, जैसा मैंने पहले बताया अगर ओवर सब्सक्रिप्शन है तो इन दैट केस वी विल बी adopting a policy called pro rata or proportionate allotment, pro rata or proportionate allotment, so we will be using pro rata or proportionate allotment। So in case of over subscription, in case of over subscription, shares are allotted shares are allotted in proportion, and case of pro rata allotment, in case of pro rata allotment, company will adjust excess application money against the allotment money demanded from the shareholders। यानी कि प्रो रेटा में क्या होता है कि अगर समझो हमें अगर ज़्यादा पैसा मिला है, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया है, तो जो भी पैसा मिला है वो हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे, दैट अमाउंट वी विल एडजस्ट इन द अलॉटमेंट। सो देखो इसका एंट्री कैसे आएगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, या आप ऐसा लिख सकते शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर allotment account। Both the entries right, share application account debited to share allotment account or share application account debited to share capital account or to share allotment account। नेक्स्ट वन कॉल्स इन एरियाज, यानी कि जो पैसा नहीं मिला है, जो पैसा नहीं मिला उसको हम बोलेंगे कॉल्स इन एरियाज, तो उसका एंट्री आएगा कॉल्स इन एरियाज अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कॉल अकाउंट डेबिट, जो भी फर्स्ट कॉल है या सेकंड कॉल है जो भी है वो लिखना पड़ेगा। तो कॉल्स इन एरियाज अकाउंट से अब ये देखो कॉल्स इन एरियाज, कॉल्स इन एडवांस, ये सब हम लोग को सम जब करेंगे ना तब हमको समझ में आएगा ये। अभी मैं ऐसा जब बोल रहा हूँ तो आपको थोड़ा कंफ्यूज होता होगा, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, वी विल बी अंडरस्टैंडिंग मोर बेटर व्हेन वी विल बी सॉल्विंग द सम बेस्ड ऑन इट। ओके, सो कॉल्स इन एरियर्स, यानी कि अगर समझो कोई शेयर होल्डर अपना कॉल मनी नहीं दे पा रहा है,
In that case, it is calls in arrears account debited to share call account. इसका उल्टा कॉल्स इन एडवांस, अगर किसी ने अगर एडवांस में पैसा दिया है तो पैसा आया है तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट. फिर आता है कॉल्स फॉरफिटेड. कॉल्स फॉरफिट यानी क्या होता है, देखो अगर समझो किसी ने कॉल मनी नहीं पे किया है, अगर कोई बंदे ने अगर शेयर का कॉल मनी नहीं पे किया है तो वो कॉल क्या हो जाएगा, फॉरफिट हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा. दैट इज कॉल्ड कॉल्स फॉरफिटेड. फिर हम जो भी कॉल्स को हमने कैंसिल किया है, जिस व्यक्ति के नाम पर था वो कैंसिल हो गया है, हम क्या करेंगे, उसको मार्केट में री इश्यू करेंगे. वी विल री इश्यू द शेयर इन द मार्केट. सो दैट इज द लास्ट एंट्री, री इश्यू ऑफ शेयर्स. री इश्यू ऑफ शेयर्स, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. देखो ये एंट्रीज जैसा मैं बोल रहा हूँ आपको थोड़ा डिफिकल्ट है, डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड. whenever we do a sum it will be more clear. Okay, so right now I'm not giving an explanation about the entry, but you take a note of all these entries in the notebook so that whenever we solve the sum you can have a look on the entries, whatever is essential, whatever is required. Okay, all the entries I have covered. Beyond this you don't have any kind of entries which we have to learn in the issue of shares.